Good morning, everyone. And from now on, be very particular when you are in the class. The moment you come in, you should be your camera should be on, and your mic should be muted after the formal greetings and all that. And do not sit in the class with your cameras off because we will be removing them. कैमरा ऑन करके नहीं रखते हैं तो आप रिमूव हो जाएंगे क्लास से, तो फिर क्लास में आने से फायदा नहीं होता है। लॉग इन करके आप कहीं चले जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से तो बात आप नहीं मान रहे टीचर्स की। तो कैसे हम उम्मीद करें कि आप 3 साल यहाँ रहेंगे और बात अगर नहीं मानते हैं तो फिर कहीं से डिसिप्लिन में तो आप यहीं पर ब्रीच हो जाता है ना, यहीं पर तो ब्रेक हो जाता है। और डिसिप्लिन में रहने का मतलब है कि वॉट एवर द टीचर इज सेइंग, वॉट एवर द रूल इज, रूल ब्रेक मत करिए। कैमरा ऑन रखिए, एंड बाय डिफॉल्ट अब कैमरा ऑन होना चाहिए, otherwise it is a uselessly a simply waste of time. All right, first we'll study something today. Today we are going to discuss the types of writing styles and how these writing styles are used, कैसे ये writing styles आप use करेंगे और कैसे ये फायदा हो सकता है, कैसे आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि कौन सा स्टाइल आपको यूज करना है, किस चीज के लिए कौन सा स्टाइल यूज करना है। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, यू नीड टू नो व्हाट आर दीज 4 राइटिंग स्टाइल्स। Is there anybody from BBA, anybody from AKU, BBA, BCA, BCom? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then this happens also to be in your syllabus, which you need to know. So first of all, we'll know the layout of what it is, and it is very important even for BPU students because the basic style is the writing style. In business communication, oral plus written is very important. So you should know when to use which style of writing. Sharing with the content with you. मैम आपका क्लास लाइव नहीं होता है मैम? What are you saying? So there are 4 essential essential types of writing styles. कितने हैं? Please make a note of it. Write down, make notes, and understand what is being taught. इसको नोट कर लीजिए और समझिए, कोशिश करिए समझने की। अब कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिए। तो how many types of writing styles are there? 4 essential writing styles. ये 4 क्या क्या है? सबसे पहले आता है expository. Please write down. Expository writing style, which is also called the informative. इसको इंफॉर्मेटिव स्टाइल भी कहा जाता है, जिसमें आप इन्फॉर्म करते हैं। जो इन्फॉर्म, एक्सपोजिटरी स्टाइल क्या होता है? एक्सपोज का मतलब क्या होता है? कोई चीज को आप अनर्थ करते हैं या सॉरी कोई किसी भी चीज को आप एक्सपोज करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, उजागर करते हैं, किसी के सामने रखते हैं कोई इंफॉर्मेशन है, तो एक्सपोजिटरी और इंफॉर्मेटिव। दूसरा उसका नेम है द इंफॉर्मेटिव स्टाइल। ये शुरू करने वाले हैं 29 को, तो अभी आपको जो 4 स्टाइल्स बता देते हैं। तो एक्सपोजिटरी इसको कहा जाता है, इंफॉर्मेटिव भी। When you are informing, you are not describing but you are informing. पहला है this is writing style.
कितने हैं? There are 4. When you inform something, when you expose something, तो आप समझ लीजिए इसको expository और informative styles कौन सा होता है? When you write, when you do not describe, उसका वर्णन नहीं करते हैं, आप बस किसी चीज को इन्फॉर्म करते हैं. अब कहाँ कहाँ ये यूज होता है? So the expository style is the informative style. Expository writing is is based on facts and short on storytelling. ये storytelling नहीं होता है, ये बस facts से सामने आता है. फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ इन्फॉर्म करना है कि आप आज ऑफिस नहीं आएंगे, आज आप कॉलेज आप नहीं आएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप इन्फॉर्म करेंगे ना. You will inform only, you will give the news of information that you will not be coming. तो why आपको बोलना नहीं है, डिस्क्राइब ही नहीं करना है, क्यों क्या हुआ वो नहीं, आपको सिर्फ बताना है, इन्फॉर्म करना है that you are not coming to, that you are not going to attend classes. It is based on facts. It can inform or instruct readers about a subject, but it is the purest form. It is not to change any mind. ये किसी के माइंड को चेंज करने के लिए नहीं कर रहे हैं आप, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, कोई स्टोरी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं आप सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं और किसी को कन्विंस भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. आपने बस इंफॉर्मेशन दे दिया कि आज आप नहीं कर क्लास नहीं करेंगे, आज आप घर में खाना नहीं खाएंगे, आप बाहर दोस्त के से मिलने जा रहे हैं. ये सब क्या हुआ? आप बस इन्फॉर्म कर रहे हैं. और किस किस चीज में इंफॉर्मेटिव राइटिंग स्टाइल यूज होता है? न्यूज आर्टिकल्स, इसको लिख लीजिए. कहाँ कहाँ एक्सपोजिटरी स्टाइल आप यूज करेंगे? जब आपको कोई न्यूज देना होगा, ये न्यूज आर्टिकल्स. किसी भी न्यूज पढ़ते हैं, when you read the news in the newspaper, what happens? आपको इन्फॉर्म करता है कहाँ पर क्या हुआ है. नॉन फिक्शन बुक्स, किसी भी किताब में जो कि फिक्शन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, नॉन फिक्शन है, उसमें आपको दिया जाता है. टेक्स्ट बुक्स में किस चैप्टर में, किस बुक में, कौन से चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो सब टेक्स्ट बुक्स में आपको इन्फॉर्म किया जाता है. कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के पढ़ते हैं आप, तो उसमें ऑथर क्या चाहता है? आपको कन्विंस नहीं करता, आपको बस इन्फॉर्म करता है. साइंटिफिक मेडिकल रिसर्च, अब साइंटिफिक मेडिकल रिसर्च जो होता है, जैसे अभी कोविड-19 पे कुछ रिसर्च हो रहा है, WHO का बहुत आर्टिकल्स आया हुआ है, मेडिकल जर्नल्स आया हुआ है, उसमें क्या होता है? वी ओनली गेट द इंफॉर्मेशन. इंस्ट्रक्शन मैनुअल, किसी भी चीज का इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं कि राइटिंग स्टाइल्स कितने होते हैं. मैंने बताया आपको कि 4 राइटिंग स्टाइल. सबसे पहला है एक्सपोजिटरी. तो आपको हम क्या बता रहे हैं? आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. कोई चीज कैसे किया जाता है, जैसे आप किसी व्हेन यू बाय अ हेयर ड्रायर या कोई नई मशीनरी आप खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर, तो क्या होता है? उसके उसके साथ एक मैनुअल आता है ना, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है ना. यस तो मैम. उसको पढ़ के आप उसको फिर आप यूज करने के पहले आप उसको पढ़ते हैं. पहले आपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपने कोई मशीनरी खरीद ली है, कोई वॉशिंग मशीन जो फॉरेन मेक है, तो बहुत सारे, या माइक्रोवेव ओवन है डिजिटल, तो जो इसको नहीं आ रहा है, जो फर्स्ट टाइमर है, दे विल बी नीडिंग एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ताकि उसको पढ़ के वो समझ सके कि कैसे यूज करना है.
तो ये सब सारे आ जाते हैं इंफॉर्मेटिव राइटिंग स्टाइल्स में और एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल में। या फिर कुक बुक्स, कोई रेसिपी जाननी है आपको, जैसे आपको कोई आइसक्रीम बनानी है या कोई कस्टर्ड बनाना है या फ्रूट केक बनाना है या एगलेस केक बनाना है या पिज्जा बनाना है या फिर मेयोनेज बनाना है, कुछ भी आपको बनाना है जो कि आप नहीं जानते हैं, चाइनीज रेसिपीज बनाना है, इटालियन डिश कुछ बनाना है आपको, तो आपको कहाँ कर देखना होगा? कुक बुक्स में देखना होगा, या यू विल गो टू यूट्यूब एंड यू विल सर्च। वहां पर क्या मिलेगा आपको? आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो कहाँ कहाँ यूज करेंगे इंफॉर्मेटिव स्टाइल? यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्म किया जा रहा है। न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। नॉन फिक्शन बुक्स, जो कि कहानी की किताब नहीं है, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, कोई टेक्स्ट बुक उठा के देख लीजिए, दे आर ओनली इन्फॉर्मिंग यू। किसी भी टेक्स्ट बुक, योर कोर्स बुक, योर टेक्स्ट बुक, कोई मेडिकल जर्नल, कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हाउ टू डू, एंड उसमें रेसिपीज भी आ जाता है, कुक बुक्स भी आ जाता है। तो जिसमें कहानी नहीं कह रहे हैं आप, जिसमें अपनी बात नहीं कह रहे हैं आप, जिसमें सिर्फ आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आप रीडर को कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये कुक बुक है और ये रेसिपी है, ऐसे नहीं बनाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप ऐसे ही बनाइए। दे विल नॉट गिव यू एनी इंस्ट्रक्शन, सॉरी, दे विल नॉट गिव यू एनी पर्सनल ओपिनियन, वो सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, राइट? So this style shows its work by including quotes, links, citation for sources, and tables and charts to highlight key data points. तो इसमें आप हाईलाइट करने के लिए आप बहुत सारे डेटा यूज कर सकते हैं, टेबल्स यूज करते हैं। An expository writing style involves instructions, ideally keeps them brief and easy to understand. और इसको लिखा जाता है बहुत ही easy to understand, सिंपल इंग्लिश में, ताकि जो भी पढ़ रहे हैं, और आप देखेंगे बहुत सारे मैनुअल्स में बहुत तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, जैसे हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, मराठी में होगा, isn't it? आपने देखा है उर्दू में होगा, ताकि जो भी खरीदता है इस प्रोडक्ट को, दे शुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस। और वो पिक्चर्स के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ होता है, ताकि पढ़ने वाला को अच्छी तरह से समझ सके। पहले क्या होता था? पहले विदाउट मैनुअल प्रोडक्ट्स आते थे और बहुत सारे लोग उसको खरीद लेते थे, लेकिन यूज नहीं कर पाते थे। तो ये पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ? नाउ व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग, वो कोई क्लिक नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है उतना, सेल्स उतना अच्छा नहीं हो रहा है, देन दे स्टार्टेड यूजिंग मैनुअल्स। फिर कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ने लगी, एंड देन दे स्टार्टेड हायरिंग कंटेंट राइटर्स, और वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इजी टू यूज मैनुअल बनाने लगे, तो इसको कैसे यूज करना है, और कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस इलस्ट्रेशन के साथ, पिक्चर्स के साथ दिया जाता है, ताकि इट इज सो इट बिकम्स वेरी इजी टू हैंडल। ठीक है? सो द फर्स्ट वाज एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल, और उसमें एक और आ जाता है, जैसे आपको कुछ, आपने कुछ लिखा है, जैसे 10 ways टू बी हैप्पी, तो ये आपका रहेगा 10 ways टू बी हैप्पी, 7 ways टू बी सक्सेसफुल। तो ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल है जो कि आपका अपना है, आप किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि खुश रहने के 10 नुस्खे क्या होते हैं, व्हाट आर द 10 पॉइंट्स टू बी हैप्पी, व्हाट आर द 7 पॉइंट्स फॉर सक्सेस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये सारे के सारे आ जाते हैं आपके वो एक्सपोजिटरी स्टाइल में। ठीक है? और एक और एक्सपोजिटरी स्टाइल में होता है एसेस, जब आप लिखते हैं कि अगर मैं इनविजिबल होता, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ कलर,
मैम फैक्ट को भी कह सकते हैं क्या? क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ फैक्ट। हाँ, ये फैक्ट ही होता है ना। जैसे कुक बुक्स में क्या होता है, जैसे इफ आई वर अ बर्ड, इमेजिनेटिव स्टाइल भी आप इसमें डाल सकते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड, तो ये एक ऐसे हो जाता आपका। इफ आई वर एन इनविजिबल मैन। मैम फैक्ट और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है मैम? जो फैक्ट वही ना इन्फॉर्म करोगे तुम, जो फैक्ट्स है उसी को तो इन्फॉर्म करोगे ना। फैक्ट्स का मतलब मैम होता है क्या कि जो बदला नहीं जा सकता ना मैम? हाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि अगर आपको इन्फॉर्म करना है कि जो फैक्ट है वही इन्फॉर्म करोगे ना, कि आपको आज कॉलेज नहीं जाना है, तो आप ये इन्फॉर्म करेंगे ये फैक्ट है, आपको नहीं जाना है और आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैम ये ठीक है, फैक्ट होगा या फिर इंफॉर्मेशन होगा मैम? तो फैक्ट्स को इन्फॉर्म करोगे ना। फैक्ट्स क्या होता है, कोई चीज है जो कि सही है, उसको आपको किसी और तक पहुंचाना है। ठीक है, फैक्ट्स को आपको कहीं और पहुंचाना है, इन्फॉर्म इन्फॉर्म करना है। जैसे हम लोग अगर ऑफिस नहीं आते हैं तो हम लोग इन्फॉर्म करते हैं कि भाई किसी वजह से आज हम नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो फैक्ट्स वो मत समझिए कि सिर्फ यूनिवर्सल फैक्ट्स ही होता है, वो भी एक है, लेकिन फैक्ट्स, इंफॉर्मेटिव राइटिंग वो स्टाइल बात इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि कुछ वो आपने बात लिखा है। जिसमें लॉजिक हो। हाँ, जिसमें लॉज स्पेशली, जैसे मैंने कहा ना कि इजी टू अंडरस्टैंड क्या होता है, आपने कुछ बनाया है रेसिपी, आपने कुछ खाना वाना बनाया तो कोई पूछे कैसे बनाया तुमने, तो आप फैक्ट्स बताओगे ना कि पहले मैंने ये लिया, फिर वो लिया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं क्या नहीं किया। राइट, आपने केक बनाया है, और हम पूछेंगे आपसे, बता बहुत अच्छा है, इट टेस्ट वेरी गुड, कैसे बनाया आपने, तो आप क्या बोलोगे हमको? जो फैक्ट्स वही ना बताओगे, उसमें कुछ मनगढ़ंत तो नहीं बता सकते हो। अगर तुमने ½ kg बेकिंग सोडा, सॉरी, ½ kg अगर आप फ्लावर लिए हो, क्या होता है, कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिए हो अगर, या वट एवर इंग्रेडिएंट्स आप यूज किए हैं, तो आप उसी मात्रा में बताइएगा ना। राइट, आपने एगलेस केक बनाया है, तो आपने कैसे बनाया है? आपने आटे का केक बनाया है, व्हीट फ्लोर केक बनाया है, मैदे का नहीं बनाया है, तो आप बताएंगे ना, फैक्ट्स बताएंगे कि हाँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। योर इंफॉर्मेशन विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अगर आपने एगलेस बनाया, आप कह रहे हैं कि एगलेस है और आपने एग्स भी डाला है, तो आपका फैक्ट्स नहीं हुआ ना। तो एक्सपोजिटरी स्टाइल और इंफॉर्मेटिव स्टाइल इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, में टेबल्स होता है, डेटा होता है, चार्ट होता है, अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो। जैसे आप न्यूज में पढ़ते हैं किसी एक्सीडेंट का, समथिंग सम हैपनिंग का, तो जर्नलिस्ट क्या करते हैं, फैक्ट्स को रिपोर्ट करते हैं। वो अपने मन से नहीं कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा राइट से जा रहा था तो लेफ्ट से किसी ने आकर के, दैट इज द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो जर्नलिस्ट का काम नहीं है। जर्नलिस्ट का काम है सिर्फ इन्फॉर्म कर देना। किसको इन्फॉर्म कर रहा है? रीडर्स को इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, उनका मतलब नहीं है कि कौन किया होगा, मुझे प्राइमा फेसी क्या लग रहा है क्या नहीं वो कुछ नहीं करता है। दैट इज द वर्क ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो एक्सपोजिटरी स्टाइल्स, द इंफॉर्मेटिव स्टाइल वे यू इन्फॉर्म। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल। तो आप इंफॉर्मेटिव एक्सपोजिटिव स्टाइल में आप क्या लिखना चाहेंगे? हम आपको एक टास्क देते हैं, राइट 10 ways to be happy। ठीक है, आपको हम देते हैं एक्सपोजिटिव स्टाइल, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब सारा एक ही साथ करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी हम लोगों को।
right? Hello. Ten ways to be happy. आप पहले डिफाइन करिए कि व्हाट इज सॉरी. Expository style is the writing style where we inform or instruct. जब आप कोई चीज को इन्फॉर्म करते हैं, किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, which is based on facts. So it's you inform only. Basically, you inform. What do you inform? You inform or you instruct facts. Now your task is 10 ways to be happy in expository writing style. अभी लिखो इसको. How to fight depression? If I were alone at home. ये सब टास्क है जो आ जाता है. Or any news you would like to share. Did you understand? मैम if I were alone at home मतलब मैम नहीं समझा. Okay. समझा देती हूँ मैं. 10 ways to be happy. खुश रहने के 10 तरीके जो आप जानते हैं, जो आपका बहुत ही पर्सनल चीज है और आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं. हाउ टू फाइट डिप्रेशन. किस तरह से डिप्रेशन से निकला जा सकता है. इफ आई वर अलोन एट होम. अगर मैं
जब कभी अगर मैं घर में अकेले हुआ तो मैम इसमें लिखना ये है मैम कि हम घर में जब अकेले होते हैं तो क्या तुम करते क्या हैं। क्या कर सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इफ आई वर इनविजिबल, अगर मैं अदृश्य होता तो ये सब सारे के सारे एग्जांपल्स होंगे एक्सपोजिटिव राइटिंग स्टाइल के। आपके सभी आइडिया बैंक के लिए एक एक पैराग्राफ आप तैयार कर लेते हैं अगर, तो आई एम गिविंग यू इनफ पॉइंट्स फॉर योर आइडिया बैंक। टेक्निकली भी सीख रहे हैं, देयर आर 4 राइटिंग स्टाइल्स। सबसे पहला होता है एक्सपोजिटिव राइटिंग स्टाइल व्हिच इज आल्सो द इंफॉर्मेटिव, इसमें ये सब चीजें आती हैं। हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, किसी अडल्ट को सिखा रहे हैं जिसने कंप्यूटर कभी छुआ नहीं है, जो जाना नहीं है, कैसे बताएंगे उसको? या एंड्रॉइड फोन चलाना, यू आर गिविंग दिस गिफ्ट टू योर ग्रैंडमदर, जिनको दे रहे हैं शायद उनको नहीं आता होगा। हाउ टू मैसेज, सो हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, स्टार्ट नहीं, हाँ स्टार्ट कैसे करना है। हमें स्टेप्स बताना है केवल ना मैम, हाउ टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। हाँ यूज कर देते हैं, हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। हाउ टू प्ले क्रिकेट, कैसे क्रिकेट खेला जाता है। जो भी स्किल आपको आता है वो आप कर सकते हैं। हाउ टू मेक वेजिटेबल बिरयानी, बहुत सारे लोगों को कुकिंग का शौक है, तो वो बता सकते हैं कैसे। अब रेसिपी बताइएगा, इंग्रेडिएंट्स बताइएगा, कितनी मात्रा में क्या आपने लिया वो बताइएगा। एंड उसमें आपके कोई मन से कोई बात नहीं कर सकते आप। मन से आप वहां तभी कर सकते हैं जब आप बता रहे हैं, वो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ऑलरेडी प्रूवन है, कोई चीज सिद्ध किया हुआ है। 10 ways to be happy, हाँ भाई ये 10 तरीके हैं खुश रहने के जो मेरा सिद्ध किया हुआ है, जो मेरा आजमाया हुआ, मेरा जाना हुआ है, फैक्ट से आएगा ये सब, ठीक है। किस तरह से डिप्रेशन को फाइट किया जाता है, ठीक है। इनफ आपको राइटिंग स्टाइल के लिए मिल गया, द फर्स्ट एक्सपोजिटिव राइटिंग स्टाइल। टुडे आप सीखे नंबर 1 एक्सपोजिटिव राइटिंग स्टाइल। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास यू विल स्टडी द डिस्क्रिप्टिव। 4 में क्या क्या होते हैं, पहले तो एक्सपोजिटरी है, फिर क्या है, सेकंड है नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, वो सब आपको धीरे धीरे बताएंगे, बट एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Giving this for your class. Okay. And today's thought of the day is always fight for a happy life. Always fight for a happy life. What do you mean by this thought of the day? What do you mean by this quote? Hello? सुखी जीवन के लिए लड़ते, हमेशा लड़ते रहो। संघर्ष, लड़ते झगड़ते नहीं, मारपीट मत करते रहो। यस मैम, संघर्ष करते रहना।
हाँ, तो सबसे जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड इज हैप्पीनेस। और संघर्ष करो कि किस तरह से खुश रह सकते हो, कुछ अच्छा काम करके, कुछ नई चीज सीख करके। जैसे आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नए लोग से मिले हैं, आपको अच्छा लग रहा है, एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, उसके लिए संघर्ष जारी रखो अपना, ठीक है? तभी तो जिंदगी में कुछ बन पाओगे, कुछ कर पाओगे। एंड व्हेन यू आर हैप्पी, यू लर्न, यू बी एट योर बेस्ट। खुश रह के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यू कैन लर्न, यू कैन गेन अ लॉट बाय जस्ट बीइंग हैप्पी। सो ऑलवेज फाइट फॉर अ हैप्पी लाइफ। Now I'm coming back to you. So if you can, is there anybody who has written something today? आपने कुछ लिखा है आज? ये लोग जो फिर कैमरा ऑफ कर दिए हैं, इसका मतलब है कि ये लोग क्लास में है नहीं। कैमरा अपना सही रखा करिए आप लोग। I have written on private school. So private school have better infrastructure required for the physical and mental development of the child. They help with the required facilities for the student to learn their lesson in a better way. Private school maintain better hygiene and environment. Private school can also provide better sport activities and equipments for the physical development of the children. Thank you. All right, Preeti, what did you understand in today's class? क्या क्या सीखा आपने? What did you understand? I want to know your feedback. There are 4 essential types of writing skills. First one is expository, which are also called formative, and it is based on facts. Okay. So, how will you use this informative style? We use in news articles, Okay. non-fiction books. All right, good. Yes, you understood. Yes, Akanksha Jaiswal. And why these students are with their cameras off? Okay, Akanksha, please hold on. Aniket Kumar, camera on करिए पहले. Yeah, Akanksha, read. Good morning, everyone. I am Akanksha Jaiswal and I have written about discipline. To be guided by rules, to pay due regards to elders and supervisors and superior officers, to obey them and to behave in an orderly manner. All these came under them the term discipline. Discipline is necessary in all walks of life, whether at school or at home, in office or in factory, in the playground or in the battlefield. Discipline is necessary. Without discipline, there will be complete chaos and disorder. There will be no peace and progress. The very social structure will become tossy. This is why so much stress is laid on discipline everywhere. In school, if the boy be indisciplined, it will be difficult for the teacher to manage the school. The boys themselves will learn nothing and the very purpose of education will be defeated. Similarly, if the subordinates do not obey their senior officer in office and factories, it will become difficult to carry on the work of the production and administration. Just imagine what will be the fate of a country if its people, servants, become indisciplined and all begin to work according to their own sweet will. Then there will be no plan and no organization. Similarly, if the army and the police refuse to carry out the orders of their generals and commanders, the enemy and the hooligans will be no difficulty in establishing their sway in the country. Thus, an indisciplined nation cannot expect to remain independent even for a moment. Even in minor spheres such as
such as the home and the playground. People cannot do without discipline. If there be no discipline in the family, all the members of the family will go their own way. Then there will be no peace and order in the family. In playground, the players do not obey the rules of the game and decide of the referee. There can be no play. Discipline is good thing and there is no evil in it. It builds character, develops strength and unity, and fosters cooperation. It is therefore necessary that boys should be taught discipline from their very childhood. It should never be overlooked as its secret of success in life. Thank you, ma'am. All right, you've used a lot of words. I would like you to describe them because there may be others who may not have understood the word. So, what do you mean by chaos? If without discipline, there will be a great deal of chaos. What is chaos? आपने यूज किया, you used chaos. ये मैं उजागरता. उजागरता. Can you explain this in simple words to other people who Yes, have ma'am. yeah? हिंदी में बताओ, सेंटेंस बना के. अनुशासन के बिना पूर्णता उजागरता एवं नियम डिसऑर्डर होता है. नियमनता. When Good. you ठीक है. When you are explaining something, Akanksha, Yes, ma'am. try to make your words very simple so that the others can understand also. Because even the Hindi meaning, there might be a lot of people who may not even understand the very technical Hindi. So chaos का मतलब होता है उजागर का. हाँ, बहुत गड़बड़ का हो जाना, chaos हो जाता है. Lot of chaos. अगर टीचर्स नहीं आए हैं छोटे बच्चों की क्लास में, imagine when there is no teacher and छोटे बच्चे क्या करेंगे, आपस में मारपीट करेंगे, डिसऑर्डरली बिहेवियर रहेगा उनका. डिसिप्लिन जहाँ नहीं रहता है वहाँ chaos हो जाता है. और यहाँ पर सारा गड़बड़ सड़बड़ होता है. बच्चा कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो टीचर्स के नहीं रहने से there is a lot of chaos in the classroom. ऐसा होता है ना. जब आपके पेरेंट्स घर में नहीं है तो आपको उधम मचाते हैं, तो आप बदमाशियां करते हैं, उधम मचाते हैं, वो सब करते हैं जो आप नॉर्मली डर के मारे नहीं करेंगे. जो पेरेंट्स आपके रहते हैं तो वो नहीं रहते हैं, तो आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाते हैं और जो जी में आता है वो आप करते हैं. And chaos is a word which means a lot of chaos happens when there is no discipline. डिसिप्लिन में अगर नहीं है तो आपका बिहेवियर chaotic हो जाता है. Another word which you have used is own sweet will. क्या मतलब होता है इसका? Own sweet will. chaos गड़बड़ हो जाना. कहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है? ऋतिक कुमार, आप बता सकते हैं गड़बड़ कहाँ हो जाता है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर chaos हो जाता है? मैम नेटवर्क थोड़ा नहीं काम कर रहा है. वो हम नहीं पूछ रहे हैं, हम अपने कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी. chaos का मतलब आप समझे? प्लीज पे अटेंशन. बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि आप क्लास में रह करके भी नहीं रहते. हाँ, ओन स्वीट विल कहाँ ढूंढ रही हो आकांक्षा? ओन स्वीट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी का मालिक. यू कैन नॉट डू वट एवर यू वॉन्ट टू. अपनी ही मर्जी से काम करना. When you are not disciplined, इसका मतलब कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे आप, और आपकी मर्जी में जो आ रहा है आप वही बात कर रहे हैं. He will come at his own sweet will, मतलब जब मर्जी होगा तब वो आएगा. So you cannot be
लेफ्ट ऑन योर ओन स्वीट विल, जब मन चाहेंगे, जब दिल चाहेगा तो कैमरा ऑन करेंगे, नहीं चाहेगा तो कैमरा ऑन नहीं करेंगे। आप अपने मर्जी से नहीं चल सकते हैं क्लास में। यू कैन नॉट डू थिंग्स एट योर ओन स्वीट विल, राइट। तो ट्राई टू पे अटेंशन। दूसरा कोई पढ़ भी रहा है तो यू टेक डाउन वर्ड्स, आप भी निकाल सकते हैं वर्ड, ताकि आप उसको पूछ सकें। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनी वर्ड, यू कैन आस्क द पर्सन टू रिपीट। जब आप सुनेंगे तब तो आप फीडबैक दे पाएंगे। And before I close the session, Priya, Sonal Priya, would you like to say something today? Yes, ma'am. Yeah, okay. I'm written upon the movie that's Khuda Hafiz. Yeah, okay, very good. Yes, I read this. Movie was released on the 14th August 2020. The film director is Farooq Kabir. Producer 1 name is minute. the What Yes, Priya, what Sonal Priya is reading, this is the expository style. She is informing you about something which she has written. A movie. So she is informing you. Maybe I have not seen this movie, so this might be informative for me also. जिसने भी Yes, नहीं sir. देखा मूवी, तो आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप कन्विंस भी नहीं करें कि आप देखिए जरूर इसको, because this is not, you are not convincing, you are just talking about a movie which you have seen. So this is a perfect example of the expository style of writing. Yeah, Sonal Priya, Yes, continue. ma'am. The producer name is Kumar Mangat. And Abhishek Pathak. Name of the star cast is in this film Vidhu Jamwal and the as Samir Chaudhary, Shivalika Oberoi as Nargis Rajput Chaudhary, Shiv Pandit as Faiz Kumar Abu Malik, Rio Kapadia as Commissioner Ghazi, Anu Kapoor as Hamid Ali Murad, and Ahana Kumra as Tamina Hamid. In this movie, the whole thing is based upon human traffickers. The storyline is the Vidhu Jamwal as Samir Chaudhary and Shivika Oberoi is Nargis Chaudhary are the main lead character in this movie. Both are there. They got married and living happy, peaceful life. And after some time, they need job, so they are applied job for the job in the foreign countries. Nargis got a job call for, but the Samir didn't get any call for this job. This is the trap for Nargis, and after some time, Nargis is ready for go to job to Dubai. There she got the trap by the human traffickers. Next day, Samir wanted to talk to her. He he dialed a number, but some things is wrong. Something is got wrong. He feels something wrong, that he goes to Dubai to find his wife, her wife, and he got the help to police officers, which name in this movie is the Faz Amu Malik and Ryu Kapadia as the Commissioner Ghazi, in which higher posted officer. And one more, Ahana Kumra is the Hamid as Tamina Hamid. She helps Samir as much as she possible. Samir do struggle to find his wife, and which people were find his in which good people were helped and the loyal uh, duties and do their duties for him. Like Commissioner Ghazi and as Tamina Hamid is his friend Hamid Ali Murad as Anu Kapoor, which was played role very well role and good role for helping him. The main culprit was the Faz Abu Malik, male police was the human trafficker, and he was killed to his female police officer Tamina Hamid. And the last thing, everything is got fine, and Samir got successful. Uh, got success to find his wife and bring her back.
to India, and I recommend it to all. Please watch this movie and such type of movie which make aware of the societies which is based on the serious issues like human traffickers. Yes. All right. The last part was not the expository style. The last part which you wherein you mentioned that I recommend this. This becomes the argumentative style, persuasive style, where the writer persuades or convinces the reader to take action. So the first part was the expository style, but the last ending part made it persuasive style, wherein in a persuasive style, the author convinces, suggests to the reader to take action. Okay. Yeah. All right. Okay, then that's it for today. Yes, ma'am.